I had seen him at his home there in our cottage. He was a young, energetic, bubbly, mischief in his eyes, Chintu. Those were the rare occasions when I had the privilege of being invited to spend an evening at Rajji's home. I would of course see him more often at RK Studios when he was training, or what they would say in today's language, prepping for his role in Bobby. His training or his prep used to happen in that iconic makeup room of RK Studios, the large makeup room at the end of the corridor on the first floor of RK Studios. That special makeup room of Rajji. He had a walk that was confident and determined. A style and a stride which was very similar to his grandfather's walk, the legendary Prithviraj Kapoor. I had seen Prithviraj walk like that in one of his films, and Chintu's walk was reminiscent of that. We worked in several films together, Chintu and I. Kabhi Kabhi, Amar Akbar Anthony, Naseeb, Goli, and more recently, 102 no doubt. When he spoke his lines, you believed every word of it. That was the genuineness and the sincerity with which it was spoken. There were never any alternatives to the way he spoke his dialogues. And there's never been any other that could lip sync a song as perfectly as he would. He had a playful attitude all the time. His playful attitude was infectious on the set. Even in the most grave sequences that we were about to shoot, he would discover that comedic spark, and we would all just crack up. Not just the sets, but even when we were together at a formal event, he would find that little distracting light-hearted moment that was lightened the situation a bit. When there was a lapse in the shooting, the shot is being ready, he would never stop and sit still, gather the people around, pull out a pack of cards, start playing, or he would bring out his very elaborate bagatelle board and ask all of us to join in and play with him. It was not fun, it was competition. He would put it up as a competition amongst all of us. During the time of his diagnosis and his treatment, he never ever lamented his condition. It was always, I'll see you soon, just a routine visit to the hospital. I'll be back shortly. Joie de vivre, the exuberant enjoyment of life, was a gene that he inherited from his legendary, the ultimate showman, the iconic Raj Kapoor. I never visited him in hospital. I never wanted to see
distress on this smiling, cherubic face. But I'm certain when he went, he must have gone with a gentle smile. Gentle smile. Yeah. पिछले अगस्त न्यूयॉर्क में मैं ऋषि कपूर साहब से मिला था। बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ रहा हूँ और हमें फिर से काम करना है। और मैंने कहा प्रॉमिस सर, यू हैव टू वर्क विथ मी एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम काम करेंगे। एंड नाउ इज गॉन। आई विल मिस यू ऋषि सर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल मेमोरीज। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मेरे बचपन का एक हिस्सा मुझे छोड़ के चला गया। आई लव यू ऋषि सर। दो जलते दियों को बुझा दिया जालिम तूफानों ने, हम सबको तन्हा छोड़ दिया रोने को अकेले वीरानों में। अभी हम इरफान साहब के गम से ठीक तरह से उभर भी नहीं पाए थे, अभी हमारे आंखों के आंसू ठीक से सूख भी नहीं पाए थे कि ये दूसरी मनहूस खबर कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। अब तो दिल उस काबिल भी नहीं रहा कि कोई और सदमा बर्दाश्त कर सके। न जाने ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की क्या मंशा है। उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमें बख्श दे अगर हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन हमारे चाहने वालों को और हम जिन्हें चाहते हैं उनको इस तरह से दुनिया से न उठा ले। बॉलीवुड को किसी की नजर लग गई, कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर। ऊपर वाले के प्यारे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सारे कलाकार और हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस शौक से कैसे उभरेगी, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। दोनों ही बहुत ही टैलेंट कूट कूट के बराबर थे। बहुत सारी वैरायटी दी, तरह तरह के रोल किए। गिटार लेके आते थे, हम किसी से कम नहीं, वो हंगामा हो जाता था। कुली, मेरा नाम जोकर, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, कुली, ये तमाम फिल्में हैं, बॉबी, जिनको देख देख के हमें लगा कि हम भी कलाकार बने, हम भी यार पर्दे पे आए, हम भी लोगों को एंटरटेन करें। तो ऋषि कपूर मेरे भी आइडल। उनकी फिल्में एनर्जी से भरी होती थी। पर्दे पे क्या एनर्जी से आते थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे, मस्त दिखते थे, हैंडसम पर्सनालिटी। कोई भी उनकी फिल्म हो, प्रेम रोग, सागर, सरगम, चांदनी, कर्ज, हम किसी से कम नहीं, वो क्या क्या काम किया उन्होंने। और हम छोटे छोटे थे, थिएटर में देखते थे, क्या एंजॉय करते थे। ऋषि कपूर साहब एनर्जी से भरे हुए थे। उनको कोई लेजी आदमी या कोई मुंह लटकाए हुए वो अच्छा नहीं लगता। और ईगो बिल्कुल नहीं था, उनको ये था ही नहीं कि मैं ऋषि कपूर हूं। अगर कहीं मिले एयरपोर्ट पे या कहीं किसी कार्यक्रम में मिले और हम हेलो करना भूल गए या हम दूसरी तरफ देखने लगे, तो पीछे से आके टपली करके कहते थे, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है, ओह कहाँ की तैयारी है। और वैसे भी इस परिवार की बहुत इज्जत है हमारी फिल्मी दुनिया में। ये कपूर खानदान है जिसने फिल्मी दुनिया शुरू की। इनके परदादा पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, बहुत बड़े बड़े लोग हुए इनके। आज इनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है हिंदी फिल्म उद्योग के लिए। और बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि एक पे एक 24 घंटे नहीं हुए और ये दूसरी खबर आ गई। मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चिंटू जी को प्रभु अपने चरणों में रखे। कल बहुत सारे मीडिया लोगों का मुझे मैसेज आया, फ़ोन भी आया, मैंने उठाया नहीं। मेरा बहुत मन खराब था ऋषि जी की डेथ के बारे में सुनकर, और ऑब्वियसली सब मुझसे पूछना चाह रहे थे। मैंने मुल्क उनके साथ लास्ट में की थी, पर मन अच्छा नहीं था, किसी से बात करने का मन नहीं था, बहुत दुख था। मैं क्या बोलूं, कुछ यादें आती हैं। मुल्क मैंने उनके साथ की, उनकी वाइफ का रोल किया था, और मतलब जब भी वो सेट पे वो होते थे तो एकदम हंसी खुशी का माहौल, मतलब मस्ती मजाक, इतना मज़ा आता था उनके साथ। और मुझे याद है कि एक बार हम लोग बैठे थे और बहुत गर्मी थी, जब हमने शूट की लखनऊ में बहुत गर्मी थी, तो बहुत तो तकलीफ हो रही थी उनको। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने ना ये खुद अपने आप ये गेटअप तय किया था। तो उनको दाढ़ी लगती थी और उनको बॉल्ड पैच लगता था, और 1-1.5 घंटा लगता था तैयार होने में, फिर 1 घंटा उतारने में। तो दिन भर के बाद इतनी गर्मी होती थी, मुझे समझा रहे थे कि मेरे ये जो बॉल्ड पैच है इसके अंदर पूरा पसीना भर जाता है, तो उनको इचिंग होती है, तकलीफ होती है, पर कोई चू नहीं, कुछ नहीं, रोज़ करते थे। और मतलब इतना मेहनती इंसान, इतना प्राप्त करने के बाद इतना हंसमुख, पूछते थे क्या खा रही है शाम को, मैं कुछ अगर चबाऊं, कुछ चना या कुछ, क्या खा रही है दिखा मुझे। बड़ी अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लगता है सब कुछ बड़ा बुरा हो रहा है। जो भी है, क्या कर सकते हैं, लाइफ इज सच। विल मिस यू ऋषि जी, मिस यू सो मच। Just heard early in the morning that Rishi Kapoor ji has passed away, Chintu ji as we would say, and it's very very sad. He was such a great man. I know him बचपन से जानता था ऋषि जी को। हम उनके आर.के. स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे, और वो एक्टर भी नहीं थे तब से जानता हूँ, फिर वो एक्टर बने। बॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था। हमारे रिश्ते, फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ, और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी, कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें, उन्हें याद करें कि एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर, एंड कपूर ख़ानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, उनमें से एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल ऋषि कपूर हैज़ लेफ्ट अस। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे, और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you. ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में हैं। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट, एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 40 साल से 40 साल तक उनका पैशन अभी तक नहीं गया था। मैं लास्ट महीने उसको मिला था। मैं शूटिंग में जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये रोल है, तुम एक पिक्चर बनाओ। वो तो ऐसा लगता था कि बीमार ही नहीं था, उतनी एनर्जी। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है, मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। सॉरी चिंटू, वी ऑल लव यू।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज़्यादा देखता था इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही, राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर ये थर्ड जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतने आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि कोरोना वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था। और न्यूयॉर्क से बढ़िया ऋषि साहब, आज जैसे ही सुना कि आपने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका सिनेमा के प्रति जो आपका वर्क है और एक इंसान के रूप में आप जो हम सब के लिए गार्जियन का काम करते थे, आपके जाने से बहुत ही दुख पहुंचा है। कल और आज ये दोनों ऐसे दिन बीते हैं जो एक आघात से कम नहीं है। ऋषि साहब, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी आपको कोई नहीं भूलेगा। मुझे ही नहीं, हर एक देशवासी को, पूरे देश को बहुत टाइम लगेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो नहीं है। They were not only precious to the industry, but I think the whole country is suffering and mourning a huge loss, and it'll take a very long time for us to come to terms with it. I've grown up watching films and dancing to the songs of Chandani and Bobby, enjoyed films like Do Duni Char and 102 Not Out, and Irfan sir has been an inspiration. He's been such a motivating factor to all actors of all generations. We look up to him. We look up to actors like him. We want to perform like him. He's an inspiration, and he's been to all generations. I can say that for sure. And I can also safely say that they will live through their films. They will be remembered. They will always live through their films. They will live in our hearts forever. Always. I pray to God to help them rest their soul in peace, and I pray that God gives strength to their family and friends at this time, and they will always be with us through their films, through their work. They will continue to inspire us always. This morning, another very, very sad news has come that Mr. Rishi Kapoor is no more. I thought I'm dreaming. Yesterday we lost Irfan Khan, and today another big actor like Rishi Kapoor. I have no words to express. If I talk personally, I came to Mumbai by seeing Rishi Kapoor's films, especially Bobby. I remember the day when I had drove down on cycle 70 kilometers to watch his film from Delhi to Rohtak, the Bobby. I think the era of romantic hero started from there.
today he's not with us. We will miss him badly, and I pray to the Almighty to give enough strength to the family members, and my tributes to Rishi Saab. Shraddhanjali. Om Shanti Shanti Shanti. Good morning. It is not exactly a very good morning. ऋषि कपूर साहब वो भी गए आज. हैरानी की बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, तो आई रिप्लाइड टू अ मैसेज इंटरेक्शन आई वाज हैविंग विद फराह खान, एंड आई जस्ट उसमें सुबह रिप्लाई में मैंने फिर ये भी लिखा कि अपेरेंटली मेरे भाई हैं संजय चितले, न्यू जर्सी में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऋषि जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपेरेंटली नॉट गुड. सो मैंने फराह से ऐसे ही पूछा, मैंने बोला ऋषि जी अपेरेंटली इज नॉट वेल, एंड फराह कहती आया ही इज नॉट बिन वेल एंड हिज डॉटर इज कमिंग बैक फ्रॉम Delhi by road. And then suddenly she called me up and she said, can you imagine, you were asking about him and he has just passed away. और जैसे आप लोगों को पता ही है, I think everybody knows that I've been reading Khullam Khulla, his autobiography over here in Dubai. I was lucky to have spent some good time with him. He had this special love for me. हम मिलते थे, बहुत हंसते थे हम लोग. वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम मुझे खूब हंसाते हो. द लास्ट टाइम मेट हिम वाज लास्ट ईयर इन न्यूयॉर्क. हम लोग क्लोज टू माई बर्थडे हम लोग वहाँ पे थे, मेरे भाई सुनील वासवानी जी उनकी फैमिली के साथ में. आई हैव हैड द प्लेजर एंड ऑनर टू सिंग फॉर हिम एंड हिज सन बोथ. वो मुझे कहते थे ऐसा कोई है क्या जिसके लिए तुमने गाया, तुमने उसके लिए भी गाया, उसके बेटे के लिए भी गाया हो. उनको मैंने बाद में बताया कि मैंने आपके लिए और आपके बेटे के लिए तो गाया ही है. मैंने अमिताभ बच्चन जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, मैंने जितेंद्र जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, और शायद धर्मेंद्र जी और उनके दोनों बेटों के लिए भी गाया है. Yes, of course I've sung for them. God bless his soul. He was a very bright and बहुत एनर्जेटिक आदमी थे वो. I have always been his fan. And चलो आज एक और obituary. God bless him and he will be remembered forever. Rest in peace. Rishi ji. It's very shocking and disturbing. Rishi ji is no more. One of the talented, versatile actor. Started from Mera Naam Joker and post the success of Bobby. The kind of movies he's done. Rafu Chakkar, Khel Khel Mein, Laila Majnun, Naseem, Amar Akbar Anthony. Brilliant, various roles he has done. He was the one actor who used to play musical instruments so accurate. It's maybe duffly or a guitar or a violin. You feel like he was playing on the screen. It was so accurate. Very extrovert, very down-to-earth person. I always regret that I didn't get chance to work with him. One of my favorite actor. Everybody, all his admirers will miss him. My condolences to the entire Kapoor family and his admirers across the world. Thank you. You can go back by the or with a speedy boat. मैडम ये तो लगे पोक मैडम पोक हाँ हाँ ऐसे ये तो वही है. देना इन्हें देना ये बार थोड़ा आगे ले लो.
એટલે કાઢો છે ને છે થોડા આગે લે છે થોડા આગે ले लो ना थोड़ा आगे ले लो थोड़ा आगे ऐसा दबो तो ऐसा तेरे दर्द से दिल वाद रहा तेरे दर्द से दिल वाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ याद रहा तेरे दर्द से दिल वाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ याद रहा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है बहुत तरक्की करो सफलता प्राप्त करो मेहनत करो देखो शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे बस उसकी ये एक गांठ बात है